कैसे हो बच्चों? ऑल वेल? सब मजे में? हमने अभी तक बहुत सारा चैप्टर नंबर 7 में से कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगर टॉपिक के नाम देखे जाए ना तो बहुत मतलब लाइन में गिने जाते हैं. नंबर 1 AC सप्लाई विद रेजिस्टेंस. Second, AC supply with an inductor. Number 3, AC supply with the capacitor. Then all three together, that is called LCR series circuit, right? And then fourth क्या समझाया था? Important one था resonance, right? अभी resonance के बाद में एक छोटा सा लेकिन important topic है जिसका नाम है power in AC circuit and the power factor. दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है. सबसे पहले power in AC circuit and the power factor. दोनों हमारे लिए important है. सबसे पहले LCR सर्किट की बात करने वाले हैं. सो व्हाट अबाउट द वोल्टेज अप्लाइड टू द AC सप्लाई, दैट मींस LCR सर्किट. सो एज यू नो वेरी वेल, दैट इज V is equal to, you know the formula VM, and supplied voltage that you know it is given by sin omega t. This is formula number 1, right? Now if we have LCR circuit, then what about the value of the what about the formula of the current? So as you know that I is equal to Im, then it is sin omega t plus phi. This is our equation, right? तो ये हमारे दो इक्वेशन है. Now how can you get the power? बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों. पावर कैसे मिलेगा आपको? So you know very well that is power P is equal to, very simple, that is V into I. कैसे लाएंगे ये फॉर्मूला? So it is equal to Vm, then it is sin omega t into this Im, and then it is sin omega t plus phi. Correct? Then after थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट में दे दूं ये फॉर्मूला को. So it is Vm, then Im, then sin omega t, and then you can say that sin omega t plus phi. This is number 3. लेकिन थर्ड फॉर्मूला हमको क्या दे सकता है? दिस वन विल गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम जो आप यहां पे डालोगे वही टाइम के ऊपर आपको ये पावर दे सकता है. इट विल नॉट गिव यू द एवरेज पावर, बट इन एसी द इंपॉर्टेंट वन इज द एवरेज पावर ऑल्सो as well as RMS power also. So सबसे पहले मुझे एवरेज चाहिए. So how can I get the average power? So for this one, I have to split this one into some other way that I can find out the average value very easily. समझ में आती है बात? ये प्रोडक्ट है साइन एंड साइन का. अभी इंटीग्रेशन सीखा नहीं है आप लोगों ने. इंटीग्रेशन सीखोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए मैथ्स में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी फॉर्मूला बनाई गई है, राइट? इसका यूज करोगे ना तो ये आंसर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा. है क्या वो? सो समझो, वी हैव 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस साइन बीटा. साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, देन यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू, यू कैन से कॉस this alpha minus beta minus cos alpha plus beta. ये हो गई बात इसके लिए. So in our case this alpha is what? So you can say this alpha is omega t. In our case beta is what? So beta is this term, right? Use this one here. So to use it I need 2 here. इसके साथ में 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा प्यारे बच्चों. तो अभी मुझे ये मिल सकता है पावर P इज इक्वल टू, इट इज Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस 2 साइन ओमेगा t इंटू दिस साइन ओमेगा t प्लस 5. अगर अभी ये हो गया, देख लो, अभी ये यूज करूंगा इसके बाद में. So therefore, this power P is equal to Vm Im by 2. Use this one. So you can say that, sir, it is cos. Then it is omega t minus omega t minus phi. Then minus cos. The addition of this 2. So you can say that it is omega t plus phi.
So what is our answer? So power P is equal to, you can split this one into two part also. How? So it is Vm upon root 2, it is Im upon root 2. And then it is cos minus phi. Then minus, okay sorry, ये ब्रैकेट करना पड़ेगा मुझे, करेक्ट. देन माइनस cos, ये 2 है, so I just write 2 omega t then plus phi. बोलो कोई तकलीफ यहां पर नहीं है बच्चों? Now you know very well cos is the even function or odd function. Then minus का मतलब उसके पास नहीं रहता है, right? So therefore we use this one as, this one is nothing but v, this one is nothing but I, and here you can say it is cos phi minus cos twice omega t plus phi. ये हो जाएगा. What is this? तो आपको समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों. नंबर 4 कर दूंगा. ये v और I कहां पे लिखा मैंने? तो एक्चुअली हमारे पास ये फॉर्मूला है VRMS. आप नॉर्मली v से लिखते हैं हम लोग यहां पर. So this is equal to Vm upon root 2. Then it is IRMS. So this is I and this is Im upon root. ये हो जाती है बात. इसीलिए यहां पे लिख दिया. Now I want to take the average over one period. So taking average over one period, what is the answer? Taking the average value of power over a period. Over a period, that means it starts from 0 and end up to t. Correct? So integration of cos twice omega t plus phi, the average value, that is equal to 0. This average is 0. Why? Because it is a cos function. आगे बताया था cos हो या sin हो, एक एवरेज के लिए उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है. तो इसका एवरेज 0 हो जाएगा, करेक्ट. और अभी जो इसका एवरेज मिलेगा ऑल्सो एंड एवरेज ऑफ cos phi, इट इज इक्वल टू cos phi. क्यों? इसमें टाइम है ही नहीं, देख लो. टाइम है ही नहीं मतलब ये कांस्टेंट है. वेरी होता है लेकिन है कांस्टेंट, तो सेम वैल्यू. So therefore, what can I say? So I just say that power P is equal to V into I into cos phi. This is the very most important result for my dear students. आपके लिए ये बहुत important result है. अभी इसके ऊपर से हम लोग 2-3 बातें करने वाले. जो आपको पास्ट में बताया था उसको याद कर करके हम लोग इसके केसेस सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट केस 1. क्या है हमारे पास केस 1 में? माय डियर फ्रेंड्स, तो केस 1 के अंदर ये है प्यारे बच्चों कि समझो ऐसा, ओनली आर, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ओनली आर. सो देयरफॉर no phase difference between I and V. So therefore this phi is equal to 0. अगर phi 0 हो जाता है तो आपको मालूम है पावर P is equal to V I cos 0. So therefore power is maximum. You can say that it is V into I. तो अगर मेरे पास LCR में से L भी नहीं है, C भी नहीं है, सिर्फ R कनेक्टेड है, तो यहां पर पावर का डेसिपेशन मतलब पावर यूज जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा. ये हम लोग यहां पे बता सकते हैं. नाउ सी द केस नंबर 2. सीधा केस नंबर 2 है क्या? इसके अंदर सिर्फ L कनेक्टेड है और यू कैन से दैट ओनली C. सिर्फ इंडक्टर होगा सर्किट के अंदर, सिर्फ कैपेसिटर होगा और लिखा है, एंड नहीं है. रेजिस्टेंस तो है ही नहीं. या तो पॉसिबिलिटी सिर्फ इंडक्टर की है, अगर वो नहीं है तो सिर्फ कैपेसिटर की है. इन बोथ द केसेस फेज डिफरेंस बिटवीन I and V in
both the cases, phase difference between V and I is पाई बाई टू। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है प्यारे बच्चों पाई बाई टू। इफ इट इज पाई बाई टू, यू नो वेरी वेल, देयरफॉर पावर P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू cos पाई बाई टू। व्हाट इज द आंसर ऑफ cos पाई बाई टू? यू नो बेटर, दैट इज 0. So therefore it is V into I into 0. So therefore the power is 0. उसका पावर 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? सर्किट यूज नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ? सर्किट काम नहीं करेगी? नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये ऐसी बात है कि यहां पर सर्किट काम करेगी, बकायदा जो काम सर्किट को करना है वो परफेक्टली होगा, लेकिन यहां पर कोई भी जगह पर पावर डेसिपेट नहीं होगा। डेसिपेट मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे हीट के फॉर्म में हो जाता है, और जो हम लोग यूज नहीं कर सकते वो यहां पर नहीं होगा। सो इन दिस कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज कॉल्ड द वॉटलेस करंट। कौन सी कंडीशन है? सो वॉटलेस करंट की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? वॉटलेस करंट की कंडीशन होती है क्या ये वॉटलेस करंट? सर्किट काम करेगा, करंट भी जाएगा, वोल्टेज भी रहेगा, लेकिन प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? तो होना ये चाहिए कि यहां पर, बोलिए, यहां पर पावर डेसिपेट नहीं होगा। तो सबसे आइडियल कंडीशन ये होती है, इंडक्टर का यूज करो या कैपेसिटर का यूज करो तो वहां पर वॉटलेस करंट पास होता है और वो पावर का डेसिपेशन नहीं होने देता। माय डियर फ्रेंड्स, द थर्ड केस 3 क्या है? LCR सीरीज कनेक्शन। क्या है LCR सीरीज कनेक्शन के लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, LCR सीरीज कनेक्शन के अंदर मेरे पास करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो फेज है ना वो फाई है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं हियर फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ओके, I and V इज क्या है? करंट, फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज व्हाट? It is phi. So therefore the power is P is equal to V into I into cos phi. ये बात हो जाएगी। आई समझ में? Then after what is phi? So here you can say that tan phi, it is equal to, it is XC minus XL upon R. अब बोलोगे सर डायरेक्ट कहां से ले लिया? मैं कहीं से नहीं लाया। ये है ना, आपको भी याद है कि जब हमने LCR सीरीज सर्किट समझाया था तब ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था। इसके अंदर ये वाली साइड थी R, ये वाली साइड थी XC माइनस XL, ये एंगल था फाई और इसको नाम दिया था Z इंपीडेंस। तो ये बात मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि व्हाट इज द, यू कैन से, इंपीडेंस। IM की वैल्यू क्या हो सकती है? सो दिस IM इज इक्वल टू दिस VM अपॉन Z. What is tan phi? Same formula you can write. It is equal to XC minus XL upon R. ये दोनों बात यहां से भी आप समझ सकते हो, लास्ट में इसीलिए रखा है कि क्रैम ना करना पड़े। फाइन। सो देयरफॉर व्हाट इज फाई? क्या बोल सकते हो फाई के लिए? सो दिस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, यू कैन से दैट XC minus XL divided by R. This is our answer. आगे बात समझ में? ये फाई का आंसर मिल गया। क्लियर? Now my dear friends, case number 4 क्या है? केस नंबर 4 के अंदर, सो केस नंबर 4 के अंदर यह बात है बच्चों कि यहां पर हमको रेजोनेंस चाहिए। किसमें रेजोनेंस चाहिए? LCR सीरीज के अंदर। सो इफ देयर इज अ रेजोनेंस, resonance in LCR circuit,
दो तरीके के रेजोनेंस होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। यहां पे हम लोग सीरीज की बात करने वाले क्योंकि सीरीज ही समझा है। सो इन रेजोनेंस दैन यू कैन से दैट XC minus XL is equal to 0. If this XC minus XL is equal to 0, what you can say about tan phi? So you can say that tan phi is equal to 0 upon R, that is 0. So therefore this phi is also 0. And once phi is 0, this is the case. So therefore this power P is equal to, you can say that V into I into cos 0. So therefore this power P is equal to V into I. That means the power is dissipate only in the resistance. Resistance में जो कंडीशन बनती थी वही कंडीशन हमको रेजोनेंस वाली कंडीशन है। सो व्हाट इज द पावर फैक्टर व्हेन देयर इज अ रेजोनेंस? पावर फैक्टर कितना होता है रेजोनेंस के लिए? सो यू नो बेटर के cos 0 1 होता है। सो यहां पर पावर फैक्टर 1, मैंने नया वर्ड यूज कर लिया, क्या? पावर फैक्टर। सो पावर डिसाइड कौन करता है? ये पावर फैक्टर जो है ना, ये सब पावर डिसाइड करता है। सी cos 0 1, cos pi by 2 0, cos phi here cos 0. So this term is called the power factor. पावर फैक्टर कौन सा टर्म बताता है बच्चों? cos phi बताता है। एक्चुअली cos phi का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रॉम दिस वन, cos phi is equal to, you can say that it is R upon Z. And what is R? Resistance. And what is Z? So Z is, you know better, under root, it is R square plus XC minus XL whole square. ये बात हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी आपको, कंपल्सन है, कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर दिस वन, क्योंकि कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द पावर फैक्टर इन द रेजिस्टेंस, सॉरी ओनली इन द रेजोनेंस, तो पावर फैक्टर ये निकल जाएगा और ये R 1 हो जाएगा 1, ये 2 नहीं है, ये Z है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर इन द एसी सर्किट एंड अबाउट द पावर फैक्टर। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर नहीं होता है तो फिर से इसको आराम से देखिएगा और उसके बाद में फिर क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज 7.3 एग्जांपल नंबर, इट इज ऑन पेज नंबर 242, राइट? क्या है सबसे पहले हमारे पास? अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस। What happened in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? एक बार हमको ये जो बल्ब कनेक्टेड है, this is the simple bulb. If it is connected with the DC supply, then what happens? With the capacitor, right? ऐसे कैपेसिटर के साथ. Then the same thing is connected with the AC supply, and then there is a capacitor. क्या होता है वो समझना है। दिस इज डीसी, दिस इज डीसी सप्लाई एंड दिस इज एसी सप्लाई, करेक्ट? दिस इज द बल्ब, दिस इज द कैपेसिटर, राइट? क्या होता है? तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? डीसी सप्लाई है तो एक बार ये प्लेट चार्ज हो गई, फिर सर्किट में से करंट 0, मतलब बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। फिर चाहे आप कैपेसिटर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इन दिस केस क्या होगा? एसी है, सो करंट इज नॉट ऑलवेज पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर इन एसी ऑल्सो, बट देयर इज ऑल्टरनेटिंग करंट लाइक दिस, प्लस माइनस चलता ही रहेगा। सो इन दैट केस इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्या बोला है? इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग, then you know the value of XC, that is the capacitive reactance, and you know its formula is omega C. As you can say, as C is decreasing, then this XC is increasing. That means reactance is increasing. As the reactance is increasing, it uses more power. So less power is available for the bulb. So that's why what happened? This bulb is not shining more, it's glowless, right? पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको दिया है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ। When a DC source is connected to capacitor, the capacitor gets charged, and after charging, no current flow in the circuit,
and the lamp will not glow. हो गई बात क्लियर? Then after, there will be no change even if C is reduced. बताया, क्योंकि इसका रोल ही नहीं है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. With the AC source, the capacitor offers capacitive reactance that is 1 upon omega C, and the current flow in the circuit. Consequently, the lamp will shine. Okay, that's it. Reducing C, increase the reactance because your denominator, increase the reactance and the lamp will shine less brightly than there before. पहले से कम शाइन करेगा, ऐसा आपको बताया गया है. राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस आप बोलोगे सर 2-3 मार्क्स में पूछ सकते, कतई नहीं. ऐसे क्वेश्चंस का जो लॉजिक है ना, ये वाला, ये आपके एमसीक्यू बन जाते हैं. और आप एमसीक्यू बुक्स में ढूंढते हो अलग अलग, ये बुक वो बुक ये बुक, नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पर है. समझो इसको, यूटिलाइज करो, देन गेट्स फिनिश. ओके, एग्जांपल नंबर 7.4. अ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब सी दिया है, वैल्यू है 15 माइक्रोफैराड. माइक्रो का मतलब 10 to the power -6 farad. Is connected to 220 volt. So this is the value of VRMS. So it is 220 volt, right? And 50 hertz source. So frequency is equal to 50 hertz. Find the capacitive reactance. मतलब उसका वैल्यू चाहिए XC कितना है वो. कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट RMS एंड पीक. आपको करंट चाहिए I, इट इज कॉल्ड IRMS. ओके, वो चाहिए. साथ में आपको IM मैक्सिमम करंट भी चाहिए. ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं. इन द सर्किट, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, if the frequency, you can say that nu dash is equal to 2 nu, that is equal to 100 hertz, right? Frequency is double. What happened to the capacitive reactance? Capacitive reactance XC dash का क्या होगा वो बताओ बच्चों. And what about the current? So I का क्या होगा वो भी बताना है. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन है एक ही ट्रैक के ऊपर, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड दिस इज 2 पाई न्यू एंड सी. राइट? सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, यू नो दैट इट इज 2, 3.14. Nu is the frequency, that is 50, and C capacitance, that is equal to 15 into 10 to the power -6. ये है हमारा आंसर. So now therefore, अभी क्या होगा? XC. So what about this XC? Its value is 212 ohm. Therefore this XC is equal to 212 ohm. This is our answer. आई बात समझ में? Now the RMS current कितना हो सकता है, RMS करंट, वो अभी समझाएंगे, है ना. सो I वैल्यू IRMS आप सिंबल I लिखते हो ना, सो इट इज V अपॉन XC, क्योंकि मेरे पास एक ही Z है, एक्चुअली फॉर्मूला Z का आएगा, इधर मैं Z लिख सकता हूं. And this is equal to V upon XC, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर ही कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, नो रेजिस्टेंस, नो इंडक्टर, therefore it is. So therefore this V is equal to what? So V हमारे पास है 220. उसके बाद में XC कितना है फाइंड आउट कर दिया, 212, and your division will gives you the answer of 1.02, ऐसा आपका 04 कैलकुलेशन करके मिल रहा है एम्पियर. बच्चों आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहिए बकायदा, क्योंकि एग्जाम में ये क्रैम नहीं कर सकते. अब बोलोगे मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार करना.
मेरी ओर से, क्योंकि ये सब बातें वहां पे जाके तकलीफ देती है. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पीक करंट चाहिए हमको. मैक्सिमम करंट बोला नहीं, ये वाला पीक करंट कितना हो सकता है बच्चों? सो दिस इज IM एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो इसका फॉर्मूला आपके पास √2I, क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? सो बेसिक फॉर्मूला है IRMS इज इक्वल टू I इज इक्वल टू व्हाट? इट इज IM अपॉन √2. ये वाला फॉर्मूला, इसीलिए मुझे ये रखना पड़ता है. सो देयरफॉर दिस IM इट इज इक्वल टू √2 and this I is where? Yes. Okay, find out कर दिया बच्चों. I, ये वाला I. So it is 1.04 and your answer, my dear friends, is 1.47. So this is 1.47 ampere. आ गई बात समझ में? Very good. Then after, उसके बाद में चाहिए बच्चों, क्या पूछा? This current oscillate between 1.47 ampere and minus 1.47 ampere. Means अभी मैं करंट का ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा, क्योंकि तो साइन से ही चेंज होने वाला है. तो यहां पे करंट ऐसे जाएगा. सो दिस इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू. सो दिस इज 1.47. दिस इज द मिनिमम पीक वैल्यू माइनस 1.47. ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, लेकिन है पीक वैल्यू. सो इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस टू and is ahead of the voltage with the phase pi by 2, क्योंकि ये करंट है, कैपेसिटर कनेक्टेड है. and as you know, in the case of capacitor, the phase difference between current and voltage is pi by 2 and current is ahead with the voltage with the phase pi by 2. okay, दूसरा क्या पूछा है? if the frequency gets double, then what happens? So you can say that if frequency is double, then क्या बोल सकते हो आप xc dash के लिए? So you can say that this xc dash is equal to 1 upon omega dash c. ये ओमेगा डैश में ये फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, तो क्या बोल सकते हो? You can say that it is twice omega c. And twice omega c का मतलब क्या होता है? 1 upon omega c is xc. So it is xc by 2. So लिखा है the frequency is double, the capacitive reactance is half, मतलब आधा हो जाएगा. And consequently current, so frequency is double, then the capacitive reactance becomes half. लिखना पड़ेगा यहां पर आपको बकायदा. Then what about the current, my dear friends? What about I? So you know better that I is equal to V upon Z dash. So it is V upon XC dash. It is V upon XC dash क्या हो जाता है? So this XC dash is equal to XC by 2, right? So is double का मतलब समझ सकते हो? This is V divided by XC by 2. So it is 2V upon XC. ये XC के साथ में 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है? So this I dash लिखना पड़ेगा. This I dash is equal to 2 into I. So here the current is double. And the reactance, capacitive reactance becomes half. Okay na? Fine. Dear friends, example number 7.5. क्या है? A light bulb and an open coil inductor are connected to an AC source through a key as shown in figure 7.11. बहुत सिंपल सर्किट डायग्राम. देखो, ऐसे यहां पर एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है, राइट? इसके साथ में एक बल्ब को कनेक्ट किया एंड देन इट इज कनेक्टेड विद द AC supply and then there is a key. This is the key, right? So this is the AC supply. This is the bulb. And this is what? This is the inductor. Question क्या पूछा है समझो. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb, number A, increases, number B, decreases, number C, unchanged. The iron rod is inserted
as the iron rod is inserted. Give your answer with your result. तो सबसे पहले जब ये सर्किट काम करता है तो इसके पास रेजिस्टेंस होगा और इसके पास इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, सॉरी एक्सएल बोलूंगा. सो व्हाट अबाउट द जेड? सो यू कैन दिस जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्सएल. सो इट इज इक्वल टू आर प्लस ओमेगा एल, राइट? तो अभी मेरे पास ये Z का वैल्यू है. सो एज यू स्विच ऑन देन द बल्ब विल ग्लो विथ सम शाइन. उसके साथ में कुछ शाइनिंग मिलेगा आपको, मतलब लाइट मिलेगी. सेकेंड, एज यू इंसर्ट द रॉड, मतलब आपको एक रॉड को अंदर डाल देना ऐसे. एज यू इंसर्ट दिस रॉड देन व्हाट हैपन? थियोरी में पढ़ा आपने बिल्कुल. एज वी इंसर्ट द रॉड then what happen? The inductance will increase. No effect on omega. As you insert this rod, this omega, this L gets increasing. So after inserting the rod, you are getting new value of this inductance and which is greater than the value of this L. So therefore, this Z dash is equal to R plus omega L dash, and therefore this Z is greater than, Z dash is greater than this Z. तो क्या होगा? इसमें से पास होने वाला करंट कम हो जाएगा और ये ज्यादा वोल्टेज करंट यूज कर लेगा, इसको कम मिलेगा क्योंकि ये सीरीज है. सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम रहेगा लेकिन ये ज्यादा वोल्टेज यूज कर लेगा, देयरफॉर इसको कम मिलेगा. और इसको कम मिला तो क्या हुआ? इसकी साइनिंग कम हो जाएगी. दिस इज द प्रॉपर रीजन, राइट? लिखना क्या? सी, एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल magnetize the iron, inserting the magnetic field inside it. Hence, the inductance of the coil is increasing. That means L is increasing. See, right? Consequently, the inductive reactance of the coil is increasing. That means omega L is increasing. As a result, larger fraction of the applied voltage appears across the inductor. मतलब ज्यादा यूज कर लिया, leaving the less voltage across the bulb, बल्ब को कम दे दिया. therefore the glow of the bulb, light bulb is decreasing. मतलब ये डिक्रीज होगा. यही क्वेश्चन एमसीक्यू बना के आपको पूछ सकते हैं. 4 ऑप्शन जो दिए वही उसके अंदर हो सकते हैं. यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए और कुछ हो सकता है चौथे ऑप्शन के लिए, लेकिन होगा यही क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए. 4 मार्क्स में तो ऐसे पूछेंगे नहीं, समझ लेना. हाँ, नीट की बात होती है तो अलग होता है, लेकिन गुजकैट परफेक्ट क्वेश्चन नेट हो सकता है. जेडबल पॉसिबल. जेडबल के लिए ये सब चीजें इन बिटवीन आ सकती है. इससे आगे भी कुछ, इसके पीछे भी कुछ हो सकता है. सो ये सब बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, 7.6 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 251. A resistance of 200 ohm, मतलब R is equal to 200 ohm, okay, and capacitor of 15 microfarad, C is equal to 1510 to the power minus 6 farad, right, are connected in series of 220 volt. So V is equal to VRMS ही बोलना है आपको, 220 volt. And the frequency that is 50 hertz, right? So calculate the current in the circuit. First calculate करना है current in the circuit. Number A. So A में जो calculation करना है उसके लिए current चाहिए, voltage दिया है, current चाहिए. Current is I is equal to V upon R. लेकिन हमारे पास सर्किट है, उसके अंदर कैपेसिटर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो Z मिल जाएगा. Z मिलेगा तो I भी मिल जाएगा. Get the point? Now, so now current के लिए फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं, so I is equal to V upon Z. ये बात. What is Z? Z is called the impedance. Impedance of the circuit is, you know that it is Z, and this Z is equal to root of R square plus XC square, क्योंकि कैपेसिटर है ना बच्चों. So therefore its value is under root. आपको जो वैल्यू दी है ना बच्चों, it is 1 upon 2 pi nu c और उसका स्क्वायर.
आप देखना यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में -2 रखा है, और -2 वाली वो वैल्यू है ना ऊपर रख दी है। वो सब हमारे लिए कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बच्चों, क्योंकि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इतना तो कितना याद करोगे आप लोग, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो देयरफॉर दिस z इज इक्वल टू रूट, अगर r की वैल्यू देख लूं तो मेरे पास 200 है, एंड स्क्वायर ऑफ इट। अगर मेरे पास 2 पाई न्यू सी की बात करूं, सो इट इज 1/2, देन 3.14, एंड देन न्यू की बात करूं मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी 50, एंड देन उसके बाद में सी की बात की जाए, सो सी इज व्हाट, इट इज 15 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड स्क्वायर ऑफ इट। ये सब हो जाएगा। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, राइट? अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अंदर क्या मिलेगा, सो इट इज 200 स्क्वायर प्लस, सबसे पहले आप 10 टू द पावर 6 जो है उसको स्क्वायर करके ऊपर ले जाएंगे, राइट? देन आप ये सब का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, नीचे रख दीजिए। मल्टीप्लीकेशन के बाद 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। फिर डिवीजन में थोड़ा बहुत हेल्प लीजिए 10 के पावर की, तो आपको आंसर मिलने वाला इट इज 212 स्क्वायर। ओम लिखा है उन लोगों ने, जरूरत नहीं है। एंड फाइनली आपको इसका आंसर मिलने वाला है 291.5। जितना इजी आपको यहां पे लगता है कि ये सॉल्यूशन एक स्टेप में ये दे देगा और एक स्टेप में ये मिल जाएगा, इतना इजी है नहीं। वो इजी तब होगा जब आप कैलकुलेटर से बकायदा इसको कैलकुलेट करोगे और यहां पर रखोगे, फिर दोनों का स्क्वायर करना है, एडिशन करना है, रूट लेना है, उसके बाद में यहां पर आप पहुंच पाओगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू रीच देयर। गेट द पॉइंट? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार के कैलकुलेशन करिए, एग्जाम में तकलीफ होती है। आप अंडर एस्टिमेट करते हो कि ये कर लिया, ये हो गया, रीड करते हो ना तब ये होता है। क्या होता है, ओके 200 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ओके 212, ओके हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतना इजी नहीं है ये। कैलकुलेशन एक बार कर दिया फिर हो जाएगा ना। अभी मुझे करंट चाहिए, सो करंट इज गिवन बाय V का वैल्यू बच्चों आपको दे दिया है ना, इट इज 220, then it is divided by Z, so it is 219.5, and your answer is this I is equal to 0.755 and it is in ampere, right? ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट द वोल्टेज RMS अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर। RMS वोल्टेज चाहिए रेजिस्टेंस के सामने या कैपेसिटर के सामने। सो वी कैन से दैट VR इज इक्वल टू जस्ट I इंटू R। I क्या है आपको, तो इट इज 0.755 इंटू दिस R इज 200। So your answer for the voltage is 151 voltage, right? And same way, it is VC, and this VC is equal to I into XC. It is 0.755. What is XC? This value that you know, 212. So it is 212, and your answer is 160. It is 160.3 वोल्ट। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है और आगे है, हाँ, अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। इफ यस, रिजॉल्व द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब हमने मान लिया कि अगर मेरे पास ऐसे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसको मैंने एसी सप्लाई के साथ में जोड़ दिया, तो नॉर्मल हम लोग ये बोलते हैं बच्चों कि ये इसके सामने वाला वोल्टेज जो था वो VR था, इसके सामने वाला वोल्टेज था वो VC था, और ये अप्लाई जो किया था वो V था। नॉर्मल पैराडॉक्स क्या बोलता है बच्चों, सो दिस V इज इक्वल टू, यू कैन से दैट VR प्लस VC। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स बोलते हैं तो क्या हो सकता है, सो हम लोग बोल सकते हैं दिस V इज इक्वल टू 151 प्लस, ओके, इट इज इक्वल टू, यू कैन से VR plus VC, then it is equal to 151 plus 160.3,
तो क्या होगा इसका आंसर? सो दिस इज 3, सो इट इज 3 पॉइंट. ये 0 है, 1 है, 1. सो 6 plus 5, it is 1, right? And here it is 311.3 वोल्ट. अरे बच्चों ये तो कुछ गलत हो गया ऐसा लग रहा है. सप्लाई कितना दिया है हम लोगों ने? 220. आंसर कितना मिल रहा है? 311.3. मेक्स इम्पॉसिबल. कभी भी पॉसिबल नहीं है. कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी मना कर रहा है बच्चों कि यहां से जितना दिया वही यूज करोगे. ये तो ये बात हो गई कि घर से निकल के 100 रुपीज लेके निकले थे और खर्चा कर दिया 300 रुपये का. पॉसिबल है? नहीं है, राइट? तो ऐसा यहां पर होगा. तो ऐसा क्यों हुआ वो मैं समझाऊंगा. एज यू नो बेटर एंड एज यू नो वेरी वेल कि यहां पर जो वोल्टेज है वो सही है, कोई डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस. बट यहां पर जो वोल्टेज है ना उसमें करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, π/2 का. सो ये दोनों वोल्टेज का आप डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते. दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ये एडिशन पॉसिबल नहीं है. आपको लिखना पड़ेगा here the difference, phase difference between current and voltage in the case of capacitor is π/2. Therefore we have to add in a vectorical method. that means आप जैसे वेक्टर से ऐड करते हो ना वैसी मेथड से ऐड करना पड़ेगा, वेक्टोरियल मेथड. सो यहां पर सिंपल एडिशन नहीं चलेगा. तो क्या होगा बच्चों? सो दिस v is equal to root of VR square plus VC square. अभी आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी. 151 स्क्वायर प्लस 160.3 स्क्वायर. करो जल्दी से आंसर. क्या मिलता है बताइए एकदम फटाफट से. राइट, क्या आंसर मिलता है देखते. द algebraic sum of the two voltage that is VR and VC is 311.3 which is more than the source voltage that is 220 volt. How to resolve this paradox? As you have learned in the text, the two voltages are not in the same phase. Therefore, they cannot be added like ordinary numbers. The two voltages are out of the phase by 90 degree. Therefore, the total of this voltage must be obtained by using the Pythagoras theorem. And therefore, this VR plus C, VR plus C is equal to VR square plus VC square. That is 220. Right? Thus, if the phase difference between the two voltages is properly taken into account, the total voltage across this resistance and the capacitor is equal to the voltage of the source. So ये बहुत मतलब एप्लीकेशन वाला नॉलेज आपको ये क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है. सो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. समझने का ट्राई करिए और इसको यूज करने का भी ट्राई करिए. बहुत अच्छी नॉलेज आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे रहे हैं और वही एप्लीकेशंस आपको क्वेश्चन में मिलने वाली है ना. गुड डे.